لگا رہے تھے شاعر اسلام مداح اصحاب رسول محترم جناب محمد احمد صدیقی صاحب لودھراں والے، اللہ رب العزت عمر میں برکتیں نصیب فرمائیں۔ اب تشریف لاتے ہیں ہمارے جنوبی پنجاب کے عظیم خطیب، خطیب دل پذیر، خطیب شعلہ بیان، جن کی آواز یقیناً دل سے نکلتی ہے اور وقت بھی دل سے نکلنے والی آواز کا ہے۔ اللہ رب العزت ان کی عمر میں برکتیں نصیب فرمائیں۔ عالم باعمل حضرت العلامہ مولانا عبد القدوس قدوسی صاحب دامت برکاتہم العالیہ علی پور۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بیدی سفرۃ کرام بررہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میرے انتہائی قابل قدر، ذی قدر و ذی وقار حضرات علماء کرام، بالخصوص ولی ابن ولی حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی اسد حبیب درخواستی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مرشد ابن مرشد حضرت مولانا پیر رحمت الرحمن درخواستی صاحب، استاذی ذی وقار استاذ محترم حضرت مولانا نسیم محمد صدیقی صاحب، دیگر علماء کرام، سامعین محترم، بزرگان مکرم، نوجوان دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں، صرف دو باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کی اپنے اکابر علماء کی موجودگی میں جرأت کر رہا ہوں۔ میرے محترم دوستو، ہم سب کا تعلق مسلک اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کے ساتھ ہے، اور ہم بلا خوف و تردید یہ بات ذمہ داری سے کہہ سکتے ہیں کہ مسلک اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا ہر عقیدہ قرآن اور نبی کے فرمان سے ثابت ہے۔ ہمارے عقائد میں اللہ کی توحید ہے، ہمارے عقائد میں تمام انبیاء کی معصومیت ہے، ہمارے عقائد میں آقا علیہ السلام کی ختم نبوت ہے، ہمارے عقائد میں تمام انبیاء کی اپنے قبور میں حیات ہے، ہمارے عقائد میں جنت اور جہنم کا حق ہونا ہے، ہمارے عقائد میں آقا علیہ السلام کا تمام انبیاء کا امام اور افضل ہونا ہے۔ جس طرح یہ تمام کے تمام عقائد یہ ہمارے مسلک اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کی پہچان ہے، انہی عقائد میں سے ہمارا قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و سنت کے دلائل سے یہ عقیدہ ہے، اور اس عقیدے میں علماء دیوبند اس وقت روئے زمین پر سب سے منفرد اور ممتاز ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے الصحابۃ کلہم عدول، آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کے سارے صحابہ، آقا کے سارے مرید، آقا کے سارے شاگرد، آقا کے سارے جانثار، آقا کے سارے مقتدی، وہ نامور ہو یا غیر معروف ہو، وہ عمراء ہو یا غرباء ہو، ان کے تذکرے
तारीख इस्लाम में जिंदा व ताबिंदा हो, या उनके तस्करों से तारीख इस्लाम की औरात खाली हो, उनके नाम से दुनिया वाकिफ हो या उनके नाम से दुनिया वाकिफ ना हो, उनके कारनामे तारीख इस्लाम में जिंदा मौजूद हो या उनके कारनामे तारीख इस्लाम के औरात में जिंदा ना हो। जो पैगंबर के सहाबा है, जो पैगंबर के शागिर्द हैं, जो पैगंबर के मुरीद हैं, जो पैगंबर के मुक्तदी हैं, जिन्होंने आमना के लाल की ईमान की हालत में ज़ियारत की है, जो पैगंबर की जमात में शामिल है, वो सारे के सारे आदिल हैं। हम जानू पे खेल कर अकीदे तौहीद की हिफाजत करते हैं, जानू पे खेल कर अकीदे रिसालत की हिफाजत करते हैं, जानू पे खेल कर अकीदे खत्म नबुव्वत की हिफाजत करते हैं, जानू पे खेल कर अकीदे हयातुन नबी की हिफाजत करते हैं। इसी तरह कयामत की सुबह तक देवबंद का बेटा, देवबंद का नाम लेने वाला, देवबंद का नमक खाने वाला, कयामत की सुबह तक पैगंबर की जमात सहाबा की अदालत का तहफ़्फ़ुज़ करता रहेगा। अस्सहाबतु कुल्लुहुम उदूल, पैगंबर के सारे सहाबा आदिल हैं। ये हमारा मरकज़ी अकीदा है। इस पे सिर्फ आखिरी जुमला, हम सहाबा के मुकाबले में तारीख को नहीं मानते, हम सहाबा के मुकाबले में किसी तहकीक को नहीं मानते, हम सहाबा के खिलाफ कोई एतराज, कोई इश्काल, कोई मकाला, कोई तारीख, कोई तहकीक, कोई बात, कोई तहरीर, कोई तकरीर हम मानने के लिए तैयार नहीं है। सहाबा के लिए रहमान का कुरान काफी है, मुस्तफा का फरमान काफी है। हम नहीं मानते। मानते क्यों नहीं? दो वजह से। पहली वजह, दो तबके ऐसे हैं जिन पे हम तनकीद करते भी नहीं और करने की इजाजत भी नहीं देते। एक तबका अंबिया का है, दूसरा तबका सहाबा का है। नबी पे तनकीद जनाब आदम से लेकर हजरत ईसा तक, अगरचे हमने उन अंबिया का कलमा नहीं पढ़ा, हम उन अंबिया के उम्मती नहीं है, लेकिन वो अंबिया हमारे ईमान का हिस्सा है। हम किसी नबी पर तनकीद बर्दाश्त नहीं करते। इसी तरह हम पैगंबर की जमात सहाबा पे किसी की तनकीद बर्दाश्त नहीं करते। वजह, अल्लाह ने नबियों को कहा रसूली, रसूली, नबी से कहा रसूली, मेरे। अल्लाह ने कह दिया मेरे, हुजूर ने कह दिया असहाबी, ये मेरे हैं। अंबिया को रब ने अपना कह दिया, सहाबा को मुस्तफा ने अपना कह दिया। अंबिया की निस्बत खुदा के साथ है, सहाबा की निस्बत मुस्तफा के साथ है। अंबिया लश्करे खुदाबंदी है, सहाबा लश्करे मोहम्मदी है। अंबिया की निस्बत खुदा की तरफ है, सहाबा की निस्बत मुस्तफा की तरफ है। ये निस्बत भी आला, ये भी आला। अंबिया को कुरान में देखते हैं, सहाबा को मुस्तफा के फरमान में देखते हैं। और इसलिए भी नहीं मानते। अल्लामा इब्न तैमिया ने एक तारीखी जुमला कहा, फरमाया एक पक होता है और एक शक होता है, एक नस है और एक ज़न है, एक यकीन है और एक गुमान है। वक्त बाकी सोने का है और हक भी बनता है, लेकिन इतने प्यार से सुन रहे, मुझे गिला कोई नहीं, लेकिन सिर्फ इतनी बात आपसे पूछना चाहता हूँ। आपके पास कोई आदमी आए और आकर कोई बात करे, फिर दूसरा आदमी आए वो आकर कोई बात करे, एक आदमी पक वाली बात करे,
दूसरा शक वाली बात करे, एक यकीन वाली बात करे, दूसरा गुमान वाली बात करे। जामिया अब्दुल्लाह इब्ने मसूद के इस सालाना इज्तिमा में आने वालों, सहाबा के दीवानों, सहाबा के जानिसारों, सहाबा के ताबेदारों, सहाबा पर जाने देने वालों, असहाबे रसूल की इज्जत का नारा लगाने वालों, मैं तुमसे पूछता हूँ, एक शक की बात करता है, दूसरा पक की बात करता है, तुम शक वाले को लोगे या पक वाले को? बोलिए बोलिए, पक वाले को लेंगे ना? एक कहता है यकीन है, दूसरा कहता है गुमान है। यकीन को लोगे या गुमान को? बोलिए यकीन को। इसी तरह सहाबा के बारे में एक पक है, सहाबा के बारे में एक शक है, सहाबा के बारे में एक यकीन है, सहाबा के बारे में एक सन है, सहाबा के बारे में एक नस है, सहाबा के बारे में दूसरा नस के मुकाबले में है। पक कुरान है, शक तारीख है। पक रब का कुरान है, शक मरे की तारीख है। हम पक के मुकाबले में शक को नहीं लेते। कोई तारीख, कोई तहकीक, कोई एतराज, कोई इश्काल, कोई तहरीर, कोई शेर, कोई जवाब, कोई तकरीर, कोई शेर, कोई जुमला जो सहाबा कुरान हदीस के खिलाफ होगा, हम या कुरान को लेते हैं या मुस्तफा के फरमान को लेते हैं। तारीख नहीं। और मुआविया कुरान वाला है। मुआविया कौन है? कौन है भाई? जामिया अब्दुल्लाह इब्ने मसूद, खानपुर के मदारिस, पाकिस्तान के मदारिस इस वक्त इज्तिमात कर रहे हैं। दस्तारे फजीलत, दस्तारे फजीलत के, दस्तारे फजीलत के। ये कौन है जिनके हाथ में मुफ्ती आज़म शेखुल हदीस से तफसीर हजरत मुफ्ती हबीबुर रहमान दरखास्ती दस्तारबंदी कराते हैं, दस्ते शफकत करते हैं। जवाब ये है भाई, ये कुरान का कारी है, ये कुरान का हाफिज है। और मेरे खानपुर में तशरीफ लाने वाले गैर सुन्नी मुसलमानों, जो कुरान का हाफिज है, कारी है, उसकी इज्जत करते हो, दस्तार बांधते हो, मुसल्ले पे खड़ा करते हो। मैं कारी की बात नहीं करता, मैं कारिए कुरान की बात नहीं करता, मैं कातिबे कुरान मुआविया की बात करता। मुआविया कुरान का कातिब है। अमीर मुआविया के बारे में कोई मुअर्रिख, कोई इस वक्त का मुतक्किक तहकीक करे और कहे नाउज़ुबिल्लाह मुआविया जालिम था, नाउज़ुबिल्लाह अमीर मुआविया पे एतराज करो। खानपुर के इज्तिमा में आने वालों, मेरा जुमला सारी जिंदगी के लिए अपने दिल में बिठा लेना। किसी चौक में, किसी चौराहे में, किसी मजलिस में, किसी महफिल में कोई नाम निहार, कोई बदनस्ल, कोई शैतानत रखने वाला अगर तुम्हारे सामने किसी तारीख का हवाला देकर, तहकीक का हवाला देकर मुआविया पे बात करे, एक जवाब देना, एक सवाल पूछना, भाई ये बता, ये तारीख, ये तहकीक, ये मर्रे की किताब क्या कुरान से ज्यादा मुकद्दस है, कुरान से ज्यादा सच्ची है, कुरान से ज्यादा आला है? वो नहीं बोल सकेगा। अकीदा बना के जाइए। सहाबा के बारे में हम या कुरान लेते हैं या मुस्तफा का फरमान लेते हैं। उस्ताद जी मौलाना नसीम साहब ने एक बात कही, उस पे एक बात खत्म। उस्ताद जी ने फरमाया कि कल की नशिस्त में हमारे किसी शेख ने एक जुमला कहा है, वली का खून 10 नस्लों तक चलता है, 10 नस्लों तक असर रखता है। दिल में मेरे जुमले को जगह देना। वली का खून, वली की विलायत, वली का तकवा, वली का बड़ा, वली का खौफे खुदा 10 नस्लों तक चलता है। सहाबा का खून 100 नस्लों तक चल रहा है, 100 नस्लों तक। मैं जिस देवबंद का मानने वाला हूँ, कासिमुल उलूम वल खैरात हजरत ननोतवी 44 पुश्तों के बाद
सिद्दीक अकबर की औलाद है, हमारे पास सहाबा की औलाद है। इमाम अहले सुन्नत मौलाना अब्दुल शकूर लखनवी फारूकी 48 मजदूर के बाद उमर की औलाद, मौलाना जफर अहमद उस्मानी हजरत सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान की औलाद है। अभी नबीर अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह सालिस बयान करके तशरीफ ले गए। ये अताउल्लाह इनके वालिद अताउल मोमिन, उनके वालिद अमीर शरीयत कश्मीर का अनवर शाह कश्मीरी, लाहौर का नफीसुल हुसैनी और जो है सैयद हुसैन अहमद मदनी, ये तमाम के तमाम मेरे अकाबिर अली की औलाद है, अली की औलाद है, अली की औलाद है, अली की औलाद है। देवबंदियत पर एतराज करने वालों, मेरे पास सहाबा की औलाद है, सहाबा की औलाद है, सहाबा का नजरिया है, सहाबा का मसला है, सहाबा का कुरान है, सहाबा की बताई हुई नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, कुर्बानी है। मेरे पास दीन भी सहाबा वाला, मेरे पास औलाद भी सहाबा वाली। देवबंद की अजमत को तराजू में न तोलो, ये तो हर दौर में अनमोल रहे हैं। वक्त नहीं, इसी पे इख्तिसार करते हुए ये जुमले आपके गोशो गुजार। उठ मर्द मुजाहिद होश में आ, तामीर खिलाफत पैदा कर, क्यों फिरके फिरके होता है। अब एक जमात को पैदा कर तू भी तरक्की दुनिया में, असबाब तिजारत पैदा कर, कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर। इस्लाम में कर तू बढ़ता है, जुल्म से फिर क्यों डरता है। या इस्लाम का नाम लड़े या शौके शहादत पैदा कर। दिल से को घबराए ना, हालात बदलने वाले हैं। जो कांटे बनकर आए थे वो लम्हे टलने वाले हैं। मजलूमों की आंखों ने शोधों की अदाएं कह ली है, शिकायतों को बस मैदानों के जालिम बदलने वाले हैं। हिम्मत नहीं तूफानों में जज्बों को हमारे छीन सके, ये जितना हमको कुचलेंगे हम उतना उछलने वाले हैं। जंग की सरजमीन बेपलिया की जामिया मस्जिद, एक छोटे कद वाला, छोटे जिस्म वाला आम समौलवी बेपलिया की जामिया मस्जिद के मिंबर पे आया था। असहाबे रसूल, आले रसूल, औलादे रसूल, अज़वाजे रसूल, बनाते रसूल की इज्जत का नारा उस मर्दे कलंदर ने बेपलिया की जामिया मस्जिद के मिंबर और मेहराब से लगाया था। फिर उस मर्दे कलंदर का नारा, उसका नजरिया पूरी दुनिया में फैल चुका है। वो मर्दे कलंदर, वो मेरा कायद, वो मेरा रूहानी बाप हर तकरीर के आखिर में कहा करता था, फना फिल्लाह की तहने बका का राज मुज़मर है। जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।